Okay, hello. So we are looking into the investments, investment management subject, and right now we are looking into the what are the financial securities and what are those types. So in last lecture we studied about debt securities. Is that bonds and what are those types of bonds and all other factors of bond means risk and all. So from in today's lecture, we are going to look into the equity securities. I hope you can see my screen. Okay. Uh, so we let us begin with the equity securities. Okay. So what we are going to look into this: the futures of equity securities, the types, the risk and return, then various approaches for the valuation of shares, then company actions that affect company's shares price. So actually, company actions means you can also use word corporate action. Corporate action भी बोलते हैं उसको, ठीक है? So okay, let's begin. So what do you mean by the equity securities actually? Equity securities represent ownership claims on a company's net assets. Okay, so in my last lecture, I explained about the what do you mean by the equity is equal quantity. Okay, so how many percent of equity shares you are holding with you in your portfolio? So that percent of ownership you can claim in that company. Okay, so जितना आपके पास इक्विटी शेयर्स है उस कंपनी का, जितने परसेंट का, उतने परसेंट के आप उसके मालिक होते हो, बराबर है? मतलब अगर ऐसा समझ लो कि वो जो कंपनी है वो पूरी की पूरी 100% शेयर्स पे चलती है, उसमें कुछ अलग नहीं है, 100% उन्होंने शेयर्स में डाल दिए, तो जिसके पास भी 51% के आसपास शेयर्स होंगे वो उस कंपनी को मतलब मालिक होगा, और बाकी के भी ओनर है मगर फिर भी उनका क्लेम थोड़ा कम परसेंट में होगा. As an asset class, equity plays a fundamental role in investment analysis and portfolio management because it represents a significant portion of many individual and institutional investment portfolios. So here we are we just looking into equity security as an investment. So how this is going to play a role in your portfolio. So we have a lot of other security as well, debt, equity derivatives, and real estate, and those as well. But why equity is most important, or more important, or more we have more interest into equity? Because here the most important thing is ownership claim. जब भी आप कोई इक्विटी शेयर बाय करते हो तो उस कंपनी में आप मालिक हो जाते हो, सबसे पहली बात. द सेकंड वन, जब अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसका बिजनेस अच्छा है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, तो उसका क्या डायरेक्ट असर किस पे पड़ता है? उसकी शेयर प्राइस पे, इक्विटी प्राइस पे पड़ेगा. तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, इसका मतलब आपकी जो आपने जो शेयर होल्ड करके रखे उसकी प्राइस बढ़ेगी. इसका मतलब क्या? आपने खरीदा था 10 रुपए के, उसकी प्राइस हो गई 15 रुपए बाद में, तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है. और अगर आपने उस कंपनी के शेयर होल्ड भी कर लिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्लेम है कैश राइट्स, कैश फ्लो पे राइट्स, मतलब जो नेट प्रॉफिट बचेगा बाद में, उस पर आपका डायरेक्ट राइट होता है. डायरेक्ट मतलब जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें आपको आपका परसेंट, जो भी आपका परसेंट आप होल्ड करते हो उस कंपनी में, उतना आपको डायरेक्टली मिलेगा. डिविडेंड जिसे बोलते हैं, वो डायरेक्टली मिलेगा. ओके, देन okay, so variations in the features of equity security are reflected in their market prices, so it is important to understand the valuation as well. So equity securities is also more volatile than other investments. मतलब इसकी प्राइस जो है वो भी मतलब बहुत वोलेटाइल है, मतलब सेंसिटिव है बहुत. और ज्यादा जो हम सिक्योरिटी एनालिसिस की आई थिंक पहले लेक्चर में बोला था मैंने
कि सिक्योरिटी एनालिसिस जो मोर फोकस होता है इक्विटीज पे, क्योंकि इक्विटी सिक्योरिटीज को शेक करने के लिए, उसकी प्राइस को चेंज करने के लिए कोई भी रीजन आ जाता है बीच में। मतलब कोई इकोनॉमिक रीजन ले लो, कोई इंडस्ट्री का रीजन ले लो, या फिर कोई नॉर्मल मैनेजमेंट का रीजन भी अगर आ गया, मतलब ऐसा किसी ने बोल भी दिया मीडिया में जाकर कि टाटा कंपनी के, टाटा का शेयर का ले लो, तो टाटा कंपनी के मैनेजर्स बहुत ही करप्टेड है, फिर भी उसके शेयर को शेयर प्राइस कम हो जाती है। तो ये काफी सेंसिटिव भी है और इसके लिए इसकी वैल्यूएशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो ये एक स्टॉक्स के बारे में दिया है। ओके, सो 1926 से 2016 तक का, ठीक है, 2016 तक का। विशाल का क्वेश्चन है, सर आपण किती मेंबर्स घेऊ शकतो इक्विटी सिक्युरिटीज करिता? म्हणजे किती मेंबर्स मीन्स क्या विशाल, नेमकं काय किती मेंबर्स म्हणजे? मला तुझा प्रश्न नाही कळाला. ओके, थोडा एक्सप्लेन करून टाकशील म्हणजे थोडा. तर you are seeing on screen the returns. Okay, returns, how much percent or how much return has been gained by the various securities. The first blue lines, which are by a red bracket, these both are equities, large stocks and small stocks. The red one is bonds, here green one is T-bill, and this one is cash, means savings or cash equivalents. तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है, अगर आपने $1 इन्वेस्ट किया था 1926 में, तो आगे जाकर वो $1 का क्या हुआ? तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न दिया है वो दिया है स्मॉल स्टॉक्स में 1926 से 2016 तक। वो $1 का उन्होंने 36 लिखा यहाँ पर, 36.929 इतनी उसकी वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं कि जो स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है शेयर्स में, इक्विटी के कंपनियों के, तो उसका जो ग्रोथ रेट है लॉन्ग रन में, नॉट स्मॉल, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं, लॉन्ग रन मतलब 10 साल 20 30 साल, तो ऐसे यहाँ पर ज्यादा रिटर्न मिलता है। आप लोगों ने वॉरेन बफे का नाम तो सुना ही होगा, ही इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ओके, इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। आप वो तो 90 के ऊपर गया है, पर उसने जो भी इन्वेस्टमेंट की है शेयर्स की, वो 30 40 साल उसने बेचा ही नहीं है। तो ये एक अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की इक्विटी के बारे में, और उसमें ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। ओके, तो अब ये रिस्क शायद इसमें आएगी या नहीं? या ओके, सो व्हाट आर द रिस्क्स, मतलब इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कौन कौन से रिस्क आपको इसमें देखने को मिलेंगे? जैसे मैंने पहले कहा कि वेरिएबिलिटी इन मार्केट प्राइसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और काफी रिस्क की, मतलब ये बहुत ज्यादा है। ओके, कैश फ्लोज कैन बी थॉट ऑफ एज commensurate with increased risk because an investor owning a risky asset with highly variable price pattern faces having to sell it for a more unpredictable price than a less risky asset. ओके, ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि जो हाईली वेरिएबल प्राइस है जिस स्टॉक्स की रही है, हाईली वेरिएबल प्राइस, हम वहां पर इन्वेस्ट करने के बजाय जो लेस वेरिएबल स्टॉक रहा है, मतलब जो स्मॉल कैप या फिर जो मिड कैप वाली जो कंपनियां होती है, अगर वहां पर आप इन्वेस्ट करो तो ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उनकी जो शेयर की प्राइस होती है वो भी कमी होती है, छोटी होती है, और इसमें जो मूवमेंट्स आता है वो भी उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता आपके पोर्टफोलियो को एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। वो लार्ज कैप मतलब जिस कंपनियों के शेयर बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े प्राइस 1000 2000 के शेयर्स होते हैं, उसमें जो मूवमेंट आता है वो बहुत बड़ा आता है, तो इसलिए आपको उसमें ज्यादा रिस्क आएगा। ठीक है,
ओके, ये तो रिस्क का पैटर्न तो नहीं है इसमें, मैं टाइप या यहाँ पर हूँ। सो फीचर्स क्या है मेनली इक्विटी सिक्योरिटीज के? लाइफ, सबसे पहली बात, इक्विटी सिक्योरिटीज की कोई लाइफ ही नहीं है, इन्फिनाइट लाइफ है। मतलब जब तक वो कंपनी बंद नहीं पड़ जाती तब तक वो इक्विटी शेयर्स चलता ही रहेगा। डेप्ट की तरह नहीं है, डेप्ट की मैच्योरिटी डेट है, पता है ना आपको, तो इसलिए उसकी लाइफ जो है चलती रहेगी इक्विटी की, नो लाइफ। देन पार वैल्यू, पार वैल्यू भी इसकी मे भी हो सकती है या मे भी नहीं हो सकती, फेस वैल्यू जो है। जैसा मैंने कहा कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है शेयर, मतलब शेयर की जो प्राइस है वो हमेशा बदलती ही रहती है। मतलब हमने 10 रुपए को लिया तो वो आखिर तक 10 रुपए का नहीं रहेगा, 15 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। डेप्ट का वैसा नहीं होता, अगर 1000 रुपए का बॉन्ड है तो 1000 का ही रहेगा आखिर तक। ठीक है, तो पार वैल्यू भी यहाँ पर अफेक्ट नहीं करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, वोटिंग राइट्स, कि आपको, आप तो ओनर है, अब आपने अगर इसकी इक्विटी लिया तो आप ओनर है, तो आपको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे इसके, उस कंपनी में। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स की इलेक्शन होते हैं, हर कंपनी में होते हैं, तो तब आपको वोटिंग का राइट मिलेगा, आप डिसाइड कर सकते हो किसे वोट करें। और सबसे आखिरी वाला है कैश फ्लो राइट्स, मतलब जो नेट प्रॉफिट है, कैश होगा जो आखिर में बचेगा, उसका क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, री इन्वेस्ट करना है या फिर क्या करना है। ओके, तो यहाँ पर जो कैश फ्लो, जब फिर जो कैश पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं आखिर में नेट प्रॉफिट के बाद, तो उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। ओके, डिविडेंड कब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? प्रॉफिट आएगा पहले ग्रॉस, उसके बाद आप सब लोन्स के ईएमआई लेंगे, डेप्ट वालों जो होते हैं बॉन्ड वाले उनका पैसा देंगे, उसके बाद आप टैक्स पे करेंगे। ओके, ये सब करने के बाद जो पैसा आखिर में बचेगा नेट प्रॉफिट, वो आपको मिलेगा। तो इसका फायदा क्या है? अगर नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली आपको डिविडेंड भी बहुत ज्यादा मिलेगा। ओके, बड़ी बड़ी कंपनी में बहुत बड़े बड़े डिविडेंड्स मिलते हैं, और ये डिविडेंड्स आपको फायदेमंद, मतलब फायदेमंद भी रहेंगे। और ये डिविडेंड मिलने के बाद भी इक्विटी आपकी ही रहेगी। ओके, अगले साल आपको फिर से डिविडेंड मिलेगा। तो ये कुछ चार जो फीचर्स है इक्विटी सिक्योरिटीज की, कि जो इनको बेहतर भी बनाते हैं एज कंपेयर टू डेप्ट सिक्योरिटीज। ओके, सो दिस आर लाइफ, इन्फिनाइट लाइफ, कोई लाइफ नहीं इसकी, मैच्योरिटी डेट नहीं इसे, पार वैल्यू भी फिक्स नहीं इसकी, बदलती रहती है, वोटिंग राइट्स मिलता है और कैश फ्लो राइट्स मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट, टाइप्स। What are the types of equity securities? First one is common shares, also called as common stocks, ordinary shares और voting shares। मतलब जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, जो कॉमन स्टॉक होता है, इसमें आपको क्या मिलता है? ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, इसमें वोटिंग आपको मिलता है, मतलब वोटिंग राइट इन शेयर्स को खरीदने के बाद आपको मिलता है। दूसरा है प्रेफर्ड शेयर, ये थोड़ा अलग होता है, प्रेफरेंस शेयर, इसमें आपको वोटिंग राइट नहीं मिलता। आई थिंक मैंने ये शायद आगे है, या इसमें आगे है, हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, अब ये शायद कल देखा है हमने डेब्ट सिक्योरिटीज में, तो ये वाला बॉन्ड आगे जाकर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये भी कल हो चुका है। वारंट्स, an equity like security that entitles the holder to buy a specified amount of common stocks of issuing company at a specified price per share। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया था वारंट पहले भी, कि ये कुछ डेरिवेटिव जैसा बिहेव करता है, कि इसमें आप इक्विटी इक्विटी बेस्ड सिक्योरिटी खरीद सकते हो, या बाय या सेल कर सकते हो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, 1 महीने के लिए ले लो। ओके, तो ये इक्विटी जैसा ही बिहेव करता है, पर इसकी कुछ समय होता है, कुछ उसका पीरियड होता है, कि 1 महीने का ही उसकी मैच्योरिटी लाइफ होती है, तो उसी में आप इसको खरीद और बेच सकते हो। एंड देन डिपॉजिट रिसिप्ट, शायद ये हमने डिस्कस किया था सीबी के लिए, डिपॉजिट रिसिप्ट की अ सिक्योरिटी रिप्रेजेंटिंग एन इंटरेस्ट इन अ फॉरेन कंपनी दैट ट्रेड्स लाइक अ कॉमन शेयर
ऑन डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज। मतलब अगर आपको बाहर की किसी कंपनी में के शेयर्स लेने हैं तो आप यहाँ से नहीं ले सकते। इसलिए क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारी आप एक बैंक है वो वहां पर शेयर खरीदेगी, और उसके बेस पर उसे उस शेयर्स को बेस बनाकर एक एक नई सिक्योरिटी तैयार करेगी, डिपॉजिट रिसिप्ट, और जिसकी प्राइस भी उसी शेयर की तरह होगी, या फिर जहां पर उसकी शेयर की प्राइस चेंज होगी यहाँ पर इस रिसिप्ट की भी प्राइस चेंज होगी। ये भी एक डेरिवेटिव जैसा ही टाइप है, सिर्फ ये जो कंपनी है वो फॉरेन मार्केट में होती है और रिसिप्ट जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में होती है। ये थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन है। ओके, सो these are some of the types of you know uh, securities. uh, okay, equity securities, sorry. So first we gonna see common stock, about what do you mean by the common stack, common stock, common share, ordinary share और voting share एक ही है, एक ही है। So common stock represents an ownership interest in a company which has an infinite life and may or may not be have a par value. अब ये वोटिंग राइट मिलता है इस शेयर से आपको, ठीक है। पर इसमें इसका एक प्रॉब्लम भी है कि अगर कंपनी अगर घाटे में जाती है तो आपको भी वो वो लॉस आपको भी बेयर करना पड़ता है। फायदा हुआ तो आपको भी मिलता है, ठीक है। तो क्योंकि आप ओनर हैं तो ओनरशिप में वो सब चीजें आ ही जाती है, लॉस और प्रॉफिट वाली। अब उसमें भी क्लास होते हैं, ओके। क्लास ए, क्लास बी शेयर्स। तो ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर ओके, इस ये थे कि इसमें आ जाएगा आपको। वन क्लास मतलब वन शेयर वन वोट, ओके। एक शेयर लिया तो एक वोट आप दे सकते हो, अगर आपने दो शेयर लिया तो दो, आप दो बार वोट कर सकते हो। और क्लास ए और बी, उसमें क्लास ए मतलब ले लीजिए सुपीरियर वोटिंग एंड कैश फ्लो राइट्स, एंड क्लास बी में आपको लोअर वोटिंग राइट्स एंड डिविडेंड राइट्स। तो पहले मतलब क्लास ए वालों को पैसा मिलता है या फिर डिविडेंड मिलता है। तो एक्चुअली ये एग्जिस्ट कहीं कहीं पे करता है, कहीं पे नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आगे का है प्रेफर्ड स्टॉक्स। अब यहाँ पर ये खरीदेंगे आप उसी प्राइस पर जिस पर आपने कॉमन स्टॉक खरीदा था। पर यहाँ पर प्रॉब्लम मतलब इसका फायदा क्या है कि यहाँ पर आपको डिविडेंड मिलता है कॉमन शेयर होल्डर्स से पहले, ओके, पहले मिल जाता है। एंड फिक्स डिविडेंड मिलता है, मतलब जैसे नेट प्रॉफिट पे, जैसे अदर जो बाकी के शेयर होल्डर होते हैं उनको कैसे नेट प्रॉफिट जितना होगा उसमें से उनको मिलता है, यहाँ पर ऐसा नहीं, फिक्स मिलता है। ये बॉन्ड की तरह ही काम करता है, ओके। तो इसलिए ये इसमें थोड़ा सा फायदा हो सकता है आपको कि आपको फिक्स डिविडेंड रेट मिले। पर अगर कंपनी बहुत ही अच्छी है और बाकी लोगों को डिविडेंड ज्यादा मिले और फिक्स रेट वाला डिविडेंड कम हो, तो ये भी आपको मतलब देखना होगा। और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो वो भी है, फिक्स डिविडेंड मिल रहा है आपको असाइन पार वैल्यू पे, तो ये भी फायदा आपको हो सकता है, ठीक है। तो प्रेफर्ड शेयर जस्ट प्रेफरेंस इससे पहले मिलता है कॉमन शेयर होल्डर से ज्यादा। देन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, ये कल भी हमने देखा था कि ये पहले तो बॉन्ड होता है, ओके, पहले तो बॉन्ड होता है, और जब ये मैच्योरिटी तक आएगा तब इसको आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक तो इसको कन्वर्ट कर लो कॉमन शेयर्स में कन्वर्जन रेशो के हिसाब से, या फिर आपको जो आपके पैसे मैच्योरिटी तक रखो और आप अपने अपने पैसे निकालो, ओके। और पर इसका जो एनुअल कूपन रेट होता है वो कम होता है बाकी के बॉन्ड होल्डर्स से। मतलब फिक्स रेट वाला जो बॉन्ड होता है उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कन्वर्टेबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल है, तो नहीं ये सिलेबस में, ठीक है। वारंट्स, अब वारंट्स क्यों दिए जाते हैं कि ऐसे कुछ लोग होते हैं
ओके, कि जिनको शेयर्स बाय करने होते हैं या सेल करने होते हैं। ओके, तो वारंट्स इशू किए जाएंगे एक स्पेसिफिक समय के लिए। नॉर्मली तो ये जो एम्प्लॉय होते हैं उनको ही दिए जाते हैं, मतलब कंपनी के एम्प्लॉय। अगर मैं टाटा में काम करता हूँ तो मुझको ही कंपनी बोलेगी कि तुम्हें शेयर्स लेने हैं क्या, वारंट्स के हिसाब से वो दिए जाएंगे। इससे उनको कैपिटल भी रेज होगा और एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन भी हो जाएगा, मतलब दोनों काम हो जाएंगे एक ही साथ। आपने एम्प्लॉय को कंपनी के शेयर देकर उसको कॉम्पेंसेशन भी दे दिया और उससे पैसे लेकर आपका कैपिटल भी रेज हो गया। ठीक है, तो वारंट्स ये भी इसको आप डेरिवेटिव में भी देखेंगे, डेरिवेटिव चैप्टर में आएगा फिर से हमें। एंड डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये शायद मैंने किसी लेक्चर में एक्सप्लेन किया था इसको डिटेल में, कि अगर एसबीआई बैंक है इंडिया की, अभी अभी समझ लो मुझे एप्पल में इन्वेस्ट करना है यूएस के, मेरे पास अकाउंट वगैरह कुछ भी नहीं है यूएस का, तो मुझे अगर उसके शेयर बाय करने तो क्या होगा कि मैं उसकी डिपॉजिटरी रिसिप्ट जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट बाय करूंगा एसबीआई से, क्योंकि एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई की वहां पर ब्रांच है न्यूयॉर्क में, और उन्होंने उस ब्रांच के इस्तेमाल से उन्होंने एप्पल के शेयर वहां खरीद लिए, दे बाय एप्पल शेयर इन न्यूयॉर्क एंड देन दे क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी डिपॉजिटरी रिसिप्ट ऑन द बेसिस ऑफ, कल हमने देखा एसेट बैक सिक्योरिटीज, तो यहाँ पर एसेट हो गए एप्पल के शेयर और उसके ऊपर उन्होंने डिपॉजिट रिसिप्ट नाम की अलग सिक्योरिटी बना ली और जिसको एप्पल कंपनी की रिसिप्ट है ऐसा मुझे बोला और मुझे भेज दी। तो ठीक है, उसकी प्राइस कैसे बढ़ेगी, तो जहां वहां पर अगर एप्पल की प्राइस बढ़ी तो इसकी भी प्राइस बढ़ेगी, कम हुई तो इसकी बढ़ेगी, मतलब कम होगी। ठीक है, तो ये ऐसी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आप इसको बाद में बैंक को ही बेच भी सकते हो जिस प्राइस पे आपने ली थी, या फिर जो भी एप्पल की प्राइस होगी उस हिसाब से। ठीक है, तो ये डिपॉजिट, ये भी एक ऑप्शन है आपको अगर बाहर इन्वेस्ट करना है तो। या तो कैश फ्लो एंड वोटिंग राइट्स किस किस को मिलते हैं, किसे नहीं मिलते। अब कॉमन स्टॉक जो होता है पहला वाला, उसको तो डिविडेंड मिलता ही है अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दिया तो। वोटिंग राइट्स या बराबर है उसको मिलते हैं एज पर द प्रोफेशनल, जितना उसके पास स्टॉक्स होगा। और लिक्विडेशन के टाइप पर जब कंपनी बंद पड़ जाएगी तब इनको कब मौका मिलता है कॉमन स्टॉक को, सबसे नीचे जब कंपनी बंद पड़ जाएगी तो सबसे आखिर में इनको पैसा मिलता है। प्रेफर्ड स्टॉक्स, इसमें कोई भी कैश फ्लो राइट नहीं होता, डिविडेंड जो पहले डिसाइड किया जाता है वही मिलता है, वोटिंग राइट उनको नहीं होता और इनको मिडल में रखा जाता है। जब कंपनी बंद पड़ेगी तो इनको 2 नंबर को रखा जाता है पैसे देने के वक्त जो, और नीचे डेब्ट सिक्योरिटीज पे जो हमने कल लिखा। अब यहाँ पर लीगल राइट ऑफ प्रॉमिस कैश फ्लो, मतलब पहले ही डिसाइड होता है कि कितने % से आपको पैसा मिलने वाला है, इसलिए और वो लीगली मिलता भी है, नहीं मिला तो वी कैन टेक ए लीगल एक्शन। वोटिंग राइट इन्हें नहीं होता, डेप्ट वालों को वोटिंग नहीं करना पड़ता, मतलब मिलता ही नहीं राइट। और हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती है जब कंपनी बंद होगी, बंद पड़ गई कंपनी एक हाथ, तो सबसे पहले पैसा ये डेप्ट वालों का देना पड़ता है सबसे पहले। ठीक है, तो उल्टा हम देखेंगे कि सबसे पहले अगर कंपनी बंद पड़ गई तो सबसे पहले पैसा मिलेगा डेप्ट वालों को, 2 नंबर को पैसा मिलेगा प्रेफर्ड शेयर्स वालों को, और सबसे आखिर में अगर कुछ बचा तो उसमें से कॉमन स्टॉक्स वालों को पैसा वो बांट देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ओके, तो इस हिसाब से आपके जो है सिक्योरिटीज को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ है एग्जाम्पल 1980 से 2010 के बीच कि किस तरह से इक्विटी की जो है एनुअल रिटर्न रहे इंडेक्स पे और नीचे डेप्ट के भी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से रिटर्न रहे, और सबसे मैक्सिमम तो सभी के सभी आप देख सकते हो पहले 3 जो इक्विटी के रहे हैं, और कुछ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड के भी अच्छे रिटर्न रहे एज कंपेयर टू गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये एनुअल % रिटर्न है। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा कि व्हाट इज इक्विटी सिक्योरिटीज, उनके फीचर्स क्या हैं और उनके टाइप्स क्या हैं।
ओके, सो इन क्वेश्चन राइट, मतलब आप तक कोई सवाल?